Okay, let us proceed further with the exercise questions. So question number 1 is find the amount when the principal is 5000 and the interest is 300. Now all the questions in fact of this chapter is simply using the one formula only, that is what you have learned, we have explained you earlier, that is this formula: interest is equal to PRT, I is equal to PRT upon 100, and one more thing what you are supposed to remember is amount is equal to principal plus interest. तो खाली यही दो फार्मूला से आपको सभी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. अब अननोन अलग अलग हो सकते हैं, तो लेट अस सी वन बाय वन द क्वेश्चंस विच हैज़ बीन गिवन इन योर बुक. दिस इज जस्ट टू हेल्प यू आउट. Find the amount when the principal is 5000 and interest is 300. Now let us see what is given in this question. So this is the solution for the question. Find the amount when the principal is 5000 and the interest is 300. So principal is given as 5000, interest is given as 300. 300. So amount is basically principal plus interest. Amount क्या होता है, जो हम फाइनली वापस करते हैं किसी बैंक को या लेंडर को, तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल में हमें इंटरेस्ट को जोड़ के देना होता है. तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सो दैट इज़ 5000 प्लस 300 विल गिव यू दिस. Now the next question is, if the amount is 6000 and the principal is 5400, what is the interest? Now amount जो हम वापस कर रहे हैं वो 6000 है, जो हमने लिया था वो 5400 था, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इंटरेस्ट. सो अमाउंट minus principal is interest. The same formula, amount is equal to principal plus interest, so interest is equal to amount minus principal. So interest is equal to amount minus principal. You can get the answer 600 here. Question number first part C. If the amount is 4500 and the interest is 500, what is the principal? Now they are asking the principal. Amount is given and interest is given. That means amount minus interest is what we take. So that is 4500 principal is equal to amount minus interest. The same formula, only you are changing the position. So if you are to calculate amount is principal plus interest. If you have to calculate principal is amount minus interest. If you want to calculate interest is amount minus principal. So here we wish to calculate principal is going to be amount minus interest. So 4500 minus 500, that gives 4000. So we have taken 4000. Let us see the next question. Next question is, find the simple interest on 2500 for 6 years at a rate of 5% per annum. Now this is the same formula. Simple interest is equal to PTR upon 100. P is the principal, R is the rate of interest, I is the interest amount, T is the time period in years. And we have to keep it in years, and R is going to be in percentage. So what is given here, 2500 क्या हो गया, एट इज प्रिंसिपल. ईयर्स कितने हैं, 6 साल, यानी टाइम इज टी इज इक्वल टू 6 ईयर्स. इंटरेस्ट रेट क्या है, आर 5%. तो इट्स सिंपली पी टी आर की जगह पे आप लिख दीजिए 2750 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 100 एंड यू विल गेट द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3625 for 8 years at the rate of 6% per annum. So again simple formula, PTR, P is 3620. कितने साल के लिए लिया, 8 साल के लिए. कितना इंटरेस्ट रेट था, 6. तो इंटरेस्ट कितना बनेगा, इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी PTR, P is 36250, 6 multiply 8 by 100. Similarly the third question, amount is the principal is taken 6500 for 2 years 6 months. Now 2 years 6 months means 2 साल 6 महीना means 2.5 साल हो गया. 2.5 years you can write, या 2 6 अपॉन 12 करके भी आपका 2.5 years आ जाएगा. ओके, एंड 4% इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट कितना बैठेगा आपका, इंटरेस्ट इज पी आर टी अपॉन 100, 6500 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 4 upon 1000. So you will get 6500. Next question is,
find the amount in the following case. Now we have to calculate the amount. So amount कैसे मिलेगा? amount क्या होता है? जो हम वापस करते हैं, किसी से लोन लिया तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलके अमाउंट बनता है. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट निकालना है और उसे प्रिंसिपल में ऐड करके अमाउंट बता देना है. प्रिंसिपल दिया हुआ है 2400, टाइम दिया हुआ है 7 years, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 6.5%. So again interest is equal to PTR or PRT upon 100. You'll calculate interest, that is going to be 1092 and 1092 plus principal. Don't forget to add principal, क्योंकि टोटल अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को मिला के जो हमने वापस दिया वो हो जाएगा 3492. ऑलवेज हमेशा अमाउंट जो होगा वो प्रिंसिपल से और इंटरेस्ट से दोनों ही ज़्यादा होगा. Next question, principal is 3500, time is 2 years, interest rate is 8%. So again we'll calculate simple interest. 3500 multiply 2 multiply 8 divided by 100 will get the interest. Add interest into the principal and get the amount 4060. Let us proceed further. I am just explaining you all the questions. You must have solved it in your classroom, so that if there is any doubt you can do it. So now the next question is, find the sum of money on which the interest equal 5700 in 3 years at an interest rate of 4%. Now it is going to be, we have to find out that what is the principal. So it is simply, what was our formula? Interest is equal to PRT upon 100. So what will be the revised formula? We have to calculate P. So PRT will go in the denominator and 100I will become the numerator. So P is going to be 100 into interest upon RT. So 100 and find the sum of which interest दिया हुआ है आपको 5700. So that is 100 multiply I, this will become divided by 3 multiply 4, and this is not SI, this is P. So P will come directly from this formula 47500. Now this is interest, this is years, time, and this is interest rate. Again P is equal to 100I upon RT. So you can do it. Write what is the interest, multiply by 100, divide by the rate of interest, multiply by time in years. You will find out what is the principal amount. Now comes to the question number 5. In what time the interest on itna become, interest on 6000 become 1200 at the rate of 5% per annum. Now यहाँ पे क्या क्या हो गया? What is given? This is the principal. इतना इंटरेस्ट हो गया 6000 प्रिंसिपल हो गया, 1200 इंटरेस्ट बनना है. कितने टाइम, कितनी रेट पे? 6%, 5% पे, और हमें टाइम पीरियड निकालना है. अगेन द सेम फार्मूला इज देयर. नाउ ओनली द इंस्टेड ऑफ पी व्हाट वी आर हैविंग हियर, नाउ टी विल बी देयर. सो इट इज, टाइम इज गोइंग टू बी 100I अपॉन PR. सो जो भी आपका 3 टर्म्स होती हैं PRT अपॉन 100 में, उसमें से जो भी अननोन हो उसे रख के बाकी दोनों को डिनोमिनेटर में ले जाना है. 100I अपॉन PR, T इज इक्वल टू 100I अपॉन PR. सो यू हैव पुट इन द वैल्यूज. 100 इंटू आई इज इंटरेस्ट 1200 डिवाइडेड बाई 6000 मल्टीप्लाई बाई 5. यू विल गेट नंबर ऑफ ईयर्स. So 4 years. Next question. 8500 amount to 15385 at the interest rate of this. Now it is amount to. Now it is amount to is coming. That means it is not, they have not given us the interest but they have given us amount to. means होता है कि हमें इतने पैसे का इतना हो गया. सो दैट मीन्स हमें इसका इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. 15385 में से 8500 माइनस करेंगे तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा. माइंड वेल, यहाँ पे लिखा है अमाउंट टू. अमाउंट टू मतलब क्या है कि जो हमें बाद में अमाउंट मिल रहा है, इंटरेस्ट नहीं दिया है, जबकि पार्ट 1 में इंटरेस्ट हमें सीधा दिया हुआ था. तो यहाँ हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा और इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस ऑफ व्हाट इज द योर
amount minus amount minus what is that principal. Again use the formula T is equal to 100 I upon PR and calculate the number of years, which comes out to be 9 here. Now question number 6, find the rate of simple interest. Same question, same thing, only the unknown is changing now. Now it's the R what is required. हमें क्या क्या दिया है, इंटरेस्ट रेट निकालना है 4000 पे 3 साल. द इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 3 ईयर्स इज 600, यानी हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है 600, टाइम पीरियड 3 साल है और जो प्रिंसिपल है वो 4000 है. तो फर्स्ट यू लिस्ट इट डाउन ऑलवेज. प्रिंसिपल इज़ 4000, इंटरेस्ट इज़ 600, टाइम इज़ 3 ईयर्स. रेट अब क्या हो जाएगा 100 I अपॉन PT. तो अब आर की जगह जो आर था वो बाहर आ गया और PT जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया है फार्मूला में. सो यू विल डू दिस 100 मल्टीप्लाई 600 divided by 4000 multiply by 3, you will get 5%. It answer will come always in percent, so you can write always percent per annum in your answer, so that your marks will not be cut by the teacher. Now come to the next question. The interest on 1000 for 5 year amount to 300. 300. So this is again interest is 300, principal is 1000, time is 3 years. Simple formula is to be implemented. 100 I upon TP will give you R, and that is what is 6% per annum. Always write it. Now the next question, question number 7. A farmer takes a loan of 8400 as a simple interest rate of 7.5% per annum. After what time it will be, he will have to pay 10920 to clear the debt. Now principal is लोन कितना लिया उसने 8400 का, और कितना उसने वापस किया 10920 का. तो दैट मीन्स इंटरेस्ट कितना हो गया, कितना उसने इंटरेस्ट पिया, इन दोनों का अंतर. तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विल गिव यू इंटरेस्ट. इंटरेस्ट रेट आपको 7.1.5 दिया हुआ है, इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं. 7 to the 14 plus 115/2. यूज द सेम फार्मूला. यू हैव टू कैलकुलेट ओनली what is required to calculate. You have to required to calculate time. Time is equal to 100 I upon PR. Keep it in the value, keep the values here, and you will get the answer as 4 years. The questions are very simple. Now question number 8. Sameer borrowed 60,000 for Rahim. He clears his debt by returning 6,400 to Rahim at the end of 12 months. The rate of interest charged by Rahim. What is the interest rate? Interest rate निकालनी है. अगेन इंटरेस्ट निकाल लीजिए. पहले टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए. 6400 माइनस 60,000 विल गिव यू 4000 इज द इंटरेस्ट. टाइम पीरियड 12 मंथ है, उसको मंथ में नहीं रखना है, ईयर्स में रखना है हमेशा इस फार्मूला में. सो रेट इज इक्वल टू 100 I अपॉन PT. You can keep it here, and it is going to be 6 2/3, that is 20/3, and it comes to be 6 2/3. Again add the percentage sign per annum. Question number 9. A man took a loan of 6 lakhs from his friends at a simple interest of 9% per annum. At the end of 3 years, he cleared the debt by paying 3 lakhs and giving him flat to his friends. What was the price of the flat? Now this question is having a little bit twist. Now instead of paying 6 lakh के बाद उसको कितना पे करना था, 6 लाख से कुछ ज़्यादा पे करना होगा, क्योंकि उसे इंटरेस्ट देना था कितना 9% पर एनम का. तो हम पहले क्या करेंगे, 6 लाख उसका प्रिंसिपल मानते हुए ये निकालेंगे कि टोटल उसका अमाउंट कितना बनता है. ओके, एंड देन जो अमाउंट बनेगा उसमें से उसने 3 लाख रुपए कैश दिए हैं, बाकी के अगेंस्ट में उसने अपना फ्लैट उसको दे दिया है, तो वो फ्लैट की कीमत आ जाएगी. राइट. सो minimum the amount taken as a loan, the amount taken by man taken the loan of 6 lakhs
फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years, इंटरेस्ट रेट इज 9%, अमाउंट पेड रिटर्न को क्लियर करने के लिए, उसने डेप्थ को क्लियर करने के लिए कितना पे किया, 3 लाख प्लस फ्लैट, हमें फ्लैट की कीमत निकालनी है। तो पहले हम इन चीज़ों में ना जाते हुए इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि 6 लाख का 3% से 3 साल के लिए 9% से कितना इंटरेस्ट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज 6 लाख multiply by 3 multiply by 9 divided by 100, that comes out to be 16200, 1,62,000. Now what is amount he should pay? Amount to be paid is 6 लाख प्लस जो उसने प्रिंसिपल लिया था प्लस जो इंटरेस्ट उसका भी हमने फार्मूला से कैलकुलेट किया, 1,62,000, यानी 7,62,000 उसको वापस करना है। 7,62,000 में से 3 लाख उसने कैश दिया है, बाकी जो कीमत है वो फ्लैट दिया है उसके बदले में। तो फ्लैट की कीमत कितनी हुई, 7,62,000 में से 3 लाख को माइनस कर दिया, 4,62,000। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ द फ्लैट। Let us go to the next question. Find the rate of interest of a sum money gets doubled in 16 years. Now this question is similar to what we have done in the practice. So there are 2 or 3 methods. One of the method is explained here. Let us see this first one by one. Money doubled हो गया है कितने में, let us assume the initial money is 100, तो doubled money कितना हो जाएगा 200। टाइम पीरियड कितना है 16 years, इंटरेस्ट कितना हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी 200 माइनस 100 दैट इज 100। तो रेट निकालना है, रेट इज गोइंग टू बी अगेन 100i अपॉन PT, 100i अपॉन, डोंट कंफ्यूज विद एस, इट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो r इज इक्वल टू i 100 अपॉन PT। सो यू विल कैलकुलेट इट, इट कम्स 6,1/4 per annum. Find the rate of interest of a sum money get doubled in, let us again do the similar manner. You can, instead of 100 you can assume x also, that will give the same answer, but still you can proceed with 100, that will simplify your calculations. Let p is equal to 100, मनी डबल्ड हो गई कितनी 200 हो गई, कितने टाइम में हुई 8 साल में। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 200 माइनस 100 दैट इज 100, r is equal to interest and multiply 100 upon PT, it is going to be 12.5 per annum. Again the next question is similar. Find the time in which a sum of money gets doubled at the interest rate of 8%. Again we assume initial 100, डबल होके डबल 200 हो गया, इंटरेस्ट हो गया 200 माइनस 100, 100 हो गया, इंटरेस्ट रेट है 8%. So time is equal to 100i upon PR. Now comes the next question, that is question number 12. A sum of 7,000 amount to itna in 3 years and at a certain interest rate. In what time will 5,000 to itna ऑफ द सेम इंटरेस्ट रेट। दैट मीन्स ये यहाँ पे 2 पार्ट हैं क्वेश्चन में, बेसिकली ये 2 क्वेश्चन के इक्वलेंट है। पहले हमें इंटरेस्ट रेट निकालना है जिसमें कि 7,000 से 8,260 हो जाता है 3 साल के अंदर। जब इंटरेस्ट रेट निकाल लेंगे तो ये पहला पार्ट हो जाएगा, उस इंटरेस्ट रेट को दूसरे पार्ट में यूज़ करना है और हमें टाइम निकालना है। तो एक फार्मूला को 2 बार लगाना है, दैट्स ऑल। तो इनिशियली पहले पार्ट के लिए क्या था, 7,000 था, अमाउंट कितना वापस किया 8,260, इंटरेस्ट कितना हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, टाइम पीरियड है 3 साल, रेट कितनी हो गई, दैट इज़ आई, ए माइनस पी इज़ नथिंग बट आई इंटू 100 अपॉन PT। तो आई विल बिकम 8260 माइनस 7,000, दैट इज़ 1260 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 7,000 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इट कम 6% पर एनम। नाउ द सेम इंटरेस्ट रेट से हमें क्या देखना है कि 5,000 से 6,500 होने में कितना टाइम लगा। तो हमें फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, वही टी के लिए टी निकालना है। तो टी इज इक्वल टू 100i अपॉन PR। सो 100 इट इज़ 100 एंड इंटरेस्ट कितना हो गया 6,500 में से 6,500 का होना है, 5,000 का होना है 6,500, यानी इंटरेस्ट कितना हो गया 6,500 माइनस 5,000 यानी 1,500। तो इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई
100 divided by PR will give you the answer, that is 5 years. Then comes to question number 13. Find the sum of the money that amount to 12,000 in 4 years at the interest rate of 5% per annum. And similar question is the next one. It is similar question what we have done earlier, जो क्लास में भी किताब में भी किया हुआ है आपका, और जो पहले भी कराया हुआ है, इससे पहले एक्सप्लेन किया था किताब में सॉल्व एग्जाम्पल में. नाउ इसको करने के 2-3 तरीके हैं. लेट अस सी वन बाई वन. द फर्स्ट मेथड इज दिस मेथड. इसके अंदर हम क्या करेंगे कि लेट अस से अमाउंट इज 12,000 गिवन, टाइम पीरियड इज 4 years, इंटरेस्ट रेट इज़ 5 annum. नाउ यहाँ पे हमें दो चीज़ें अननोन हैं, इंटरेस्ट भी नहीं पता है और प्रिंसिपल भी नहीं पता है. तो हम प्रिंसिपल दो तरीके से निकाल सकते हैं. या तो हम प्रिंसिपल को अननोन मान लेते हैं एक्स की तरीके से और उसे सॉल्व कर सकते हैं, या हम दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि पहले 100 प्रिंसिपल को 100 मानते हुए उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालते हैं और फिर सॉल्व करते हैं. तो लेट अस सी बोथ द मेथड्स वन बाई वन. एक डायरेक्ट फार्मूला के थ्रू भी हो सकता है, वो हम तीसरे मेथड के तौर पे देखेंगे. तो पहले मेथड में देखिए हमने क्या किया है. यहाँ पे हमने मान लिया है कि प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने लिया था वो 100 रुपीज़ है, और 100 रुपीज़ पे इतने साल में कितना पैसा हो जाएगा इस इंटरेस्ट रेट से, ये हम निकालेंगे. अभी हम 12,000 का यूज़ नहीं करेंगे. सो इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी PTR अपॉन 100. तो P हमारा कितना है 100, T कितना है 4 साल, इंटरेस्ट रेट कितना है 5%. तो अगर हमने 100 रुपये लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 20 रुपये, किससे 5% के इंटरेस्ट रेट से 4 साल के लिए. तो हमारा अमाउंट हो जाएगा P प्लस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 120 रुपये. तो 100 रुपये का 120 रुपये हो जाएगा अगर हम 4 साल 5% एनम से लोन चार्ज करते हैं. अब अगर हमारा अमाउंट 1 रुपया हो, यूनिटरी मेथड पे आ गए हम. 100 रुपये की जगह अगर हम पे 1 रुपया हो तो हमारा प्रिंसिपल कितना होगा 100 अपॉन 120. यानी 1 रुपया कब मिलेगा हमें, जब हम 100 अपॉन 120 रुपीज़ देंगे. यानी 1 रुपया जब वापस मिलेगा इंटरेस्ट के साथ, जब हमें 100 अपॉन 120 जो भी फ्रैक्शन आता है 1 से कम उतना देंगे. तो अब हमें 12,000 लेना है, तो 12,000 कब लेंगे, तो P अपॉन 120 1 रुपये के लिए इतना, 12,000 के लिए कितना हो जाएगा P. वो हमने क्या करा 100 अपॉन 120 को पहले 1 के लिए निकाला, 100 के लिए पता था 1 के लिए निकाला, फिर 12,000 के लिए निकाला जो पूछा गया था. तो 100 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाई 12,000, सो दिस विल गिव अस 10,000. इसी को करने का दूसरा मेथड जो है वो इससे अगले क्वेश्चन में बताया गया है. तो लेट अस डू विद दैट मेथड ऑल्सो. और इसी को हम एक सिंपल तरीके से दूसरी तरह भी कर सकते हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं. दिस इज दिस. लेट प्रिंसिपल अमाउंट इज x. सो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 12,000 माइनस x, क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है जो अमाउंट मिला माइनस प्रिंसिपल अमाउंट. तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR अपॉन 100. इसको हमने सॉल्व किया 12,000 माइनस x प्रिंसिपल की जगह P की जगह x रखा, T की जगह 4 and 5. We have solved it for x and x is going to be again 10,000. So this is how we can get it with this method. इसमें हमने क्या किया है, यूनिटरी मेथड ना लगा के सिंपली जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या किया है, हमने इंटरेस्ट को निकाला है, अमाउंट माइनस x किया है और P की जगह भी x रखा है क्योंकि प्रिंसिपल हमने x मान लिया था. ओके. इसका एक तीसरा मेथड भी है जिसमें हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं, जो आपको नेक्स्ट इसके बी पार्ट में समझाया गया है. उस मेथड में हम क्या करते हैं, दिस इज़ ए सिंपल मेथड. इसका बी पार्ट इस मेथड से किया गया है जो आपके लिए काफ़ी सिंपल हो सकता है अगर आप फार्मूला याद रख सकें. इसको है वही उसी फार्मूला से आया है, भी आप समझाएंगे कैसे आया है. इसका बी पार्ट में भी सेम है. आपको अमाउंट दिया है, ईयर्स दिया है, इंटरेस्ट रेट दिया है, प्रिंसिपल नहीं दिया और इंटरेस्ट नहीं दिया. तो हमने व्हाट वी हैव डन, देयर इज़ ए फार्मूला A इज इक्वल टू P 1 प्लस RT अपॉन 100. इस फार्मूला को हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं. A इज इक्वल टू P
ब्रैकेट के अंदर 1 + RT/100, इसका मतलब वही है जो पहला वाला फार्मूला है, खाली इससे आपको क्वेश्चन में कुछ समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आपको A मिल जाएगा, सीधा आपको P मिल जाएगा, ठीक है। सो हाउ विल डू इट, आपने A की वैल्यू डाल दी, दैट इज़ अमाउंट जो आपको मिला, P की वैल्यू अननोन है, 1 कांस्टेंट है ही, R और T आपको पता है 7.5 and 5. You solve it and you will get some equation like this, and you will get the value of P directly from this right. So you can do this also. Last question is also can be done with the same method. इसमें भी वही है, आपको दिया गया मिस्टर शर्मा borrowed some money from a friend at the interest of इतना at an interest rate of 8% per annum. He repaid his debt paying 16,800 at the end of 5 years. How much did he borrow? यानी अगेन हमें ना तो इंटरेस्ट पता है और ना ही हमें प्रिंसिपल पता है, तो वही है, या तो हम प्रिंसिपल को x मान के और इंटरेस्ट को जो 16,800 माइनस x करते हुए सॉल्व कर दें और सेम फार्मूला लगा दें, I = PTR/100, या that is like this, we can do it like this, यानी हम borrowed अमाउंट को x ले लें, इंटरेस्ट को 16,800 माइनस x करके PRT/100 करते हुए x की वैल्यू निकाल लें, हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर यही वाला जो फार्मूला है A = P1 + RT/100, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये फार्मूला भी बेसिकली यहीं से आ रहा है, लेकिन इस फार्मूला में आपको जो रेशियो वगैरह का प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएगा, सीधा आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। इस फार्मूला से भी आप ये सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ किया गया है। A = 1 + RT/100 × P। सो यहाँ पे आपने A डाल दिया, 1 + RT की जगह R की वैल्यू डाल दी, R is 8 and T is 5 ईयर्स है, डिवाइडेड बाई 100, इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, LCM लिया और उसके बाद आपने सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, P की वैल्यू यहाँ से भी 12,000 आ गई। So that's all. I hope this chapter is clear to you and you can solve all the questions of your book. All the best and I hope you can do it easily. Thank you all.